Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IS Academy. Now, tell me, what if ruling party of a country was suddenly banned from the politics? What if a mass uprising forced a powerful leader to flee overnight? जी हाँ, Bangladesh is witnessing one of the most shocking political overhauls in its history. जी हाँ, शेख हसीना, the once unshakable prime minister of Bangladesh, is now in exile. Her Awami League erased from the political landscape and a new wave of power is rising. The country is now under an interim government which is led by a Nobel laureate, that is Muhammad Yunus. जी हाँ. So Muhammad Yunus and the only pro-Bangladesh forces like BNP, Bangladesh Nationalist Party, as well as Jamaat-e Islami are allowed to contest the election. But here's the real question. Is this the beginning of the true democracy or the rise of another authoritarian rule? Will the Bangladesh Nationalist Party, that is BNP, support Awami League return? Or is this the end of an era? And most importantly, who will control Bangladesh next? So stay tuned as we dive into this gripping political thriller. So first of all, let's try to understand the context of this news. तो अब हुआ क्या है? Recently, Awami League is banned from election. जी हाँ. अब Bangladesh former ruling party, that is Awami League, which is led by Sheikh Hasina, has been barred from contesting the elections in future by the interim government. Interim government ने बिल्कुल पूरी तरीके से शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया है कि वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते. समझ में आ रहा है? जी हां. एंड महफूज आलम, हु इज अ टॉप एडवाइजर, एज यू कैन, जो कि टॉप एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के, महफूज आलम, एज यू कैन सी हिज फेस. तो महफूज आलम, who is a top advisor to the government, stated that only Bangladesh pro groups can participate in elections. सिर्फ बांग्लादेश प्रो ग्रुप्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में. नाउ दीज ग्रुप्स इंक्लूड लाइक खालिदा जिया. जी हां. अब इसमें इन ग्रुप्स में कौन आता है? खालिदा जियाज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. अब खालिदा जिया की कौन सी पार्टी है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. इट इज अलाउड. And Jamaat-e Islami and other parties. So these are allowed for contesting the election. तो इन पार्टियों को अलाउ किया जाएगा. महफूज आलम ने यह भी कहा है that Awami League would never be allowed back into the politics. इन्होंने बोला है that Awami League would never be allowed to come into the Bangladesh politics. Now this struggle, this tussle has been started, और इस चीज पर इंडिया काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है. क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बैकग्राउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू that Bangladesh former ruling party Awami League which is led by Sheikh Hasina, has been barred from contesting the future elections by the interim government. महफूज आलम, जो कि टॉप एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला है ओनली प्रो बांग्लादेश ग्रुप्स विल बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट दी इलेक्शन. एंड महफूज आलम ने अवामी लीग के लिए यह भी बोला हुआ है दैट अवामी लीग वुड नेवर बी अलाउड टू कम बैक इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश. अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ शेख हसीनाज फॉल फ्रॉम पावर ऑन 5 अगस्त 2024. जी हां, अ मास अपराइजिंग लेड बाय द स्टूडेंट्स अंडर द एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट व्हिच फोर्स्ड शेख हसीना. ये मास अपराइजिंग हुआ था एंड दिस हैज फोर्स्ड शेख हसीना टू फ्ली the country on 5th of August 2024. Many Awami League leaders were also jailed on the charges like murder and corruption, while other went into the hiding. जी हाँ. तो अब उसी के बाद आप देखेंगे कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनती है? इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना होती है, which is led by Muhammad Yunus. So interim government and Muhammad Yunus. Now the current interim government, which is led by Muhammad Yunus, who is a Nobel laureate and a former economist. अब इन्हीं के टॉप एडवाइजर हैं महफूज आलम. आप देख सकते हैं इनका पिक्चर. महफूज आलम, who played a key role
in the movement that overthrew the Sheikh Hasina. इनका सबसे बड़ा हाथ है शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटवाने में, and is now he is a de facto minister in the interim government of Muhammad Yunus. So the government says that no elections will be held until reforms are completed. तो ये यूनुस की गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक रिफॉर्म्स नहीं हो जाते, until the reforms are completed and the institutions which are destroyed by the Sheikh Hasina government. तो इनका ऐसा मानना है कि जब तक हम जो इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय किए शेख हसीना ने, जब तक हम उसको फिर से सही नहीं कर लेते, उनको फिर से एक नए आइडियोलॉजी के बेसिस पर नहीं बनाया जा सकता, तब तक न्यू इलेक्शंस नहीं होंगे। अब इस पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का क्या कहना है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी डज नॉट सपोर्ट द बैनिंग ऑफ आवामी लीग। जी हां, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी डज नॉट सपोर्ट द बैनिंग ऑफ आवामी लीग बट डिमांड क्विक इलेक्शंस आफ्टर मिनिमल रिफॉर्म्स। इन्होंने कहा है कि क्विक इलेक्शंस होने चाहिए आफ्टर द मिनिमल रिफॉर्म्स। अब ऐसा क्यों कहा? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा, जी हां आप देख सकते हैं इनकी इमेज, जनरल मिर्जा, इन्होंने बोला है, तो इनका नाम है जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम। अब इन्होंने ये कहा है ही वांटेड, एंड इन्होंने वॉर्न भी किया इंटरिम गवर्नमेंट को, ही वॉर्न दैट इंटरिम गवर्नमेंट should only stay for power for just a short term. इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पावर में कभी भी हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है? और इन्होंने ये भी कहा कि मान लो रिफॉर्म होने में 10 इयर्स लगेंगे, सम सेज दैट रिफॉर्म्स माइट टेक 10 इयर्स, तो क्या तब तक इलेक्शन नहीं होंगे? दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। नाउ अब इसी के बाद देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। जी हां, अब इस साल हमने देखा 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, तो ऐसा जताया जा रहा है दैट स्टूडेंट लीडर्स हु लेड द एंटी अवामी लीग मूवमेंट दे माइट फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश। जी हां, एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैज वार्न्ड दैट द इंटरिम गवर्नमेंट विल लूज क्रेडिबिलिटी इफ इट्स एडवाइजर्स फॉर्म अ पार्टी व्हाइल इन पावर। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यह भी कहा कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर फॉर्म करेंगे तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देंगे, ऐसा कहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। सो एडवाइजर्स लाइक नाहिद इस्लाम, जैसे कि कुछ एडवाइजर्स है, नाहिद इस्लाम है ना, तो आप देख सकते हैं इनकी इमेज, नाहिद इस्लाम। सो नाहिद इस्लाम दे सेड दैट दे मे रिजाइन बिफोर फॉर्मिंग अ पार्टी, कि हम रिजाइन कर सकते हैं पार्टी को फॉर्म करने से पहले। जी हां, तो ये सभी ऑफिशियल्स हैं मोहम्मद यूनुस के गवर्नमेंट में। नाउ पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी। जी हां, तो अब ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबल फॉर्मेशन? सो अभी मैंने आपको बताया कि नाहिद इस्लाम ने कहा कि दे मे रिजाइन बिफोर फॉर्मिंग अ पार्टी, एज यू कैन सी हिज इमेज, है ना। अब सवाल ये उठता है अपकमिंग इलेक्शंस होंगे कब? तो अब आइए समझते हैं अपकमिंग इलेक्शंस, लेट 2025 और अर्ली 2026। सो मोहम्मद यूनुस सेड दैट इलेक्शंस कुड हैपन बाय लेट 2025 और अर्ली 2026, बट ओनली आफ्टर पॉलिटिकल कॉन्सेंसस एंड रिफॉर्म्स आर अचीव। जब पॉलिटिकल कॉन्सेंसस और रिफॉर्म्स पूरी तरीके से अचीव हो जाएंगे तभी इलेक्शंस होंगे। तो अब इस पूरे चीज में जो की पर्सनैलिटीज हैं वो कौन है? Sheikh Hasina, who is in exile in India, then Mahfouz Alam, who is the key leader of the anti-discriminatory movement, and he was the main personality against the Sheikh Hasina government overthrow, then Mohammad Yunus, Khalida Zia, ये सब important personalities हैं। तो अभी current political situation क्या है? Awami League is banned from election. Bangladesh Nationalist Party and Jamaat-e-Islami, they are allowed to continue their political activities. Now, another important thing, no elections will be there until reforms are completed. Possible formation of a new youth-led party in Bangladesh. जी हाँ, तो अब सवाल ये उठता है ओवरऑल अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सिचुएशन किस तरह की हमें नजर आ रही है? कुछ बांग्लादेश is actually standing at the crossroad. A once dominant party, that is Awami League, has vanished now. A Nobel laureate is in charge, that is Mohammad Yunus,
and whispers of a new youth-led party which are growing louder. So will the interim government hold fair elections or cling to the power under the guise of reforms? Can the Bangladesh Nationalist Party and Jamaat Islami seize this golden opportunity, or will they too face the same fate as Awami League? And perhaps the biggest mystery, where is Sheikh Hasina and will she ever return to Bangladesh? So let me know your thoughts in the comment section, that what you think, that what will happen next. Will Bangladesh see a new democracy, or is this just another political game? So don't forget to like, subscribe and share our video for the latest updates on this unfolding political storm. Thank you so much.